Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComScience Institute of Information Technology, and today is our ninth lecture regarding practical issues in cash and receivables, dispositions and recognitions. And this is our lecture number 9 regarding the course of issues in accounting practices. Well, in the previous lecture, we have already studied the cash and receivable issues, the issues regarding these cash and receivables. We have also seen how the cash is being managed, what is the issues regarding cash, how the internal controls will be managed. And then after that, we have also seen how do we have to go through with the account receivables and how we have to manage the account receivable, how to recognize the account receivables. All these things are being covered in the previous session, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 था. उसमें हमने ये भी देखा था कि अकाउंट रिसीवेबल में से बैड डेट्स को कैसे हमने अकाउंट फॉर करना है, बैड डेट्स को कैसे मैनेज करना है, बैड डेट्स कैसे क्या नाम है राइट ऑफ किए जाते हैं, किस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बनाया जाता है, इफ जिसे हमने राइट ऑफ कर दिया है उसको हम दोबारा किस तरह सेटल आउट कर लेते हैं. That is all we have studied in the last lecture. So now we are moving towards the further part of that same topic, that is of practical issues and cash and receivables, disposition and recognitions. These are the important things regarding the issues, because इसमें बहुत ज़्यादा issues exist करते हैं in case of cash and receivables. So these are the learning objectives. As you can see that explaining accounting issues related to notes receivables and valuation of notes receivable. कुछ issues exist करते हैं notes receivable और valuation of notes receivable से. Explain the fair value options कि fair value किससे identify करते हैं. बहुत बड़ा issue ये create रहता है कि fair value कैसे हो, क्या market जो बता रही है वो no, या जो लोगों ने लगाई हुई, maybe that would be, but what the market presume for that specific thing. Explaining accounting issues related to dispositions of accounts and notes payables कि क्या issues exist करते हैं for disposition of account receivables and notes receivables. Describe how to report and analyze receivables कि हमने किस तरह report करने receivables और किस तरह analyze करने हैं. Now that is the whole thing that we are going to study today. Cash and account receivables हमने इनको completely discuss किया था yesterday last this lecture में, in lecture number 8, but now in this lecture we are going to study the notes receivables and special issues. These are the very important issues. हम लोगों का इस वक्त concentration क्या है कि notes receivables हम लोग देखें और special issues को देखें, because the first two parts are being covered in the whole previous lecture. That is actually a web of whole topic that we are going to cover. ये पूरे topic whole topic के एक यूं समझ लें कि पूरा का पूरा web है कि इसमें topic में हमने क्या क्या चीजें cover up करनी होती हैं. So recognition of notes receivables. Notes receivable supports by formal promissory note, a negotiable instrument maker sign in favorable of payee, interest bearing or zero interest bearing. There is a both possibilities are there. हमने last lecture में ये भी discuss किया था कि which of them are known as accounts payable and which of them are known as notes payable. हमने ये भी साथ कहा था कि जो अकाउंट्स पेबल वर्बली जनरेट हुए हैं उनको हम कहेंगे अकाउंट्स पेबल, और जो बाय रिटन कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हुए हैं दैट इज नोन एज नोट्स रिसीवेबल. दैट कुड बी मोर देन 1 ईयर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नोट्स पेबल, तो नोट्स पेबल में वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ये कभी नोट इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकता है, कभी ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग भी हो सकता है. सो देयर एग्जिस्ट बोथ द पॉसिबिलिटीज कि वेदर दे आर इंटरेस्ट बियरिंग और वेदर दे आर नॉट इंटरेस्ट बियरिंग. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये. मेक साइन इन फेवर ऑफ पेई, पेई के इन फेवर में होता है कि जिसने इसे पे करना है. और इसमें साथ ही नेगोशिएबल मींस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी फॉर्म. ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट कैश लोन ले लेती है बाय मेकिंग इट एज अ कोलेटरल बिहाइंड दैट लोन. सो दीज आर द थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन नोट्स रिसीवेबल्स. Generally originate from customers who need to extend payment period of outstanding receivables. ये किनके लिए बना है एक्चुअली? ये उनके लिए जो चाहते हैं कि हमारा पीरियड जो होता है, हमारा पेमेंट पीरियड एक्सटेंड हो, लॉन्गर हो, तो उसे हम कहते हैं कि दैट नोट रिसीवेबल्स इज वन ऑफ द थिंग दैट दे रिक्वायर. देन हाई रिस्क न्यू कस्टमर्स के लिए हमेशा हाई रिस्क पे होता है. क्यों?
न्यू कस्टमर है, ना आपके पास क्रेडिट की कोई हिस्ट्री है उसकी, ना ही कोई आपके पास उसका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है। सो न्यू कस्टमर है, उसके लिए हाई रिस्क होता है कि दैट ही मे डिफॉल्ट। अगर आपने उससे पैसे अभी नहीं लिए या उसे क्रेडिट पे दे दिए हैं तो मे बी देयर इज अ चांसेस दैट दे वुड डिफॉल्ट। लोन टू एम्प्लॉयज एंड सब्सिडरीज, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नोट रिसीवेबल्स, कि आप जब लोन देते हैं अपनी सब्सिडरी अपनी एम्प्लॉयज को, तो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन नोट्स रिसीवेबल्स। Sales of property, plant and equipments, that are also sometimes be included in notes receivables. Lending transactions, the majority of notes are because of lending transactions, कि आपने किसी को उधार पैसे दिए हैं, so that all things are included in the notes receivables. Recognition of notes पे receivables, short term and long term दो तरह के होते हैं। Recorded at face value less allowance in the short term मीन्स के रिकॉर्ड किस पे होते हैं, एट फेस वैल्यू लेस अलाउंस। अलाउंस मीन्स जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। लॉन्ग टर्म रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड। लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, उस अमाउंट पे होते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड, कि जितनी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जितना कैश आपको रिसीव होना है उसकी आप क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, और जितनी प्रेजेंट निकालेंगे उसी को हम कहेंगे कि दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश कलेक्टेड। इंटरेस्ट रेट्स आते हैं हमारे पास, दिस दैट मींस स्टेटेड रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट, देन it is issued at face value, note issued at face value if the stated rate is greater than market rate. One more thing, what is meant by market rate? क्या होता है ये market rate? Market rate is something that is decided by the market, कि अगर ये आपके पास नोट्स हैं तो इसके ऊपर आपको कम से कम इतना रिटर्न मिलना चाहिए। देखिए, आपने किसी को अगर पैसे उधार पे दिए हुए या किसी ने आपसे उधार लिया हुआ है, एक तरह से आपने चीजें बेच दी और उधार दिया हुआ है ना आपने, अब उस उधार को आप अगर लॉन्ग टर्म साल 2 साल, आप ये तो नहीं वेट करेंगे कि साल 2 साल वो वही चीज रहे जो एग्जिस्टिंग है, वही चीज नहीं रहेगी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करती है। देखिए, अब आज का जो 1 रुपया है वो कल के 1 रुपये के बराबर होगा? नो, इन्फ्लेशन का इफेक्ट आएगा, मे बी वो 80 पैसे या 90 पैसे के इक्वल हो। सो दैट मीन्स वो जो इफेक्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वो इसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, एंड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट वो हमें कवर अप करता है। सो जब भी यहां पे कहेंगे कि स्टेटेड रेट इक्वल्स टू मार्केट रेट मींस दैट नोट्स रिसीवेबल विल बी इशूड एट पार। लेकिन समटाइम्स जो आपने स्टेटेड रेट, जिस रेट पे आपने नोट्स रिसीवेबल इशू किए हैं, वो इक्वल नहीं होता मार्केट रेट का, वो कभी कभी मार्केट रेट से ज्यादा होता है। इसका मतलब है मार्केट से भी आप ज्यादा रिटर्न उस पे नोट रिसीवेबल पे रिसीव कर रहे हैं। सो इट मींस यू हैव टू सोल्ड योर note receivables, and sorry, you have to issue your note at note receivable of premium पे करेंगे जब भी stated rate ज्यादा है मार्केट रेट से, तो we always included it as a premium, and when stated rate is lesser than market rate, that means it should be occur in the discount. Discount means कि मैं उसकी इश्यूएंस अगर सपोज पार वैल्यू जो है वो 1000 है, तो डिस्काउंट का मतलब है कि मैं लेस देन 1000 में उसे इश्यू करूं, और प्रीमियम का मतलब है मैं ग्रेटर देन 1000 में उसे इश्यू करूं। सो दीज आर द थिंग्स इन्वॉल्व फॉर इश्यूएंस ऑफ नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल्स में हमेशा यही होते हैं कि व्हाट इज द एट पार, व्हाट इज इट्स प्रीमियम, व्हाट इज इट्स डिस्काउंट। नोट्स इश्यूड एट फेस वैल्यू, वो नोट्स इश्यू जो फेस वैल्यू पे इशू। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स, देयर इज सम इलस्ट्रेशंस इन्वॉल्व इन इट। Bigelow Corporation lends Scandinavian import $10,000 in exchange for a $10,000. 3 years note bearing interest at 10% annually. The market rate of interest for not similar risk is also 10%. How does Bigelow record the receipt of the note? Now अब क्या हुआ है, Bigelow Corporation ने lend किए हैं Scandinavian imports को कितने $10,000 in exchange of $10,000 3 years bearing इंटरेस्ट एट एनुअली, यानी कि हमने वहां पे नोट इशू किया कितने ईयर्स का, 3 इयर्स का। अब जब हमने नोट्स इशू किए हैं कितने, 3 इयर्स की, तो दैट मींस कि वहां पे हमने लेंडिंग दे दी है बट नोट इशू कर दिया, बट दैट इज हैज एन इंटरेस्ट बियरिंग नोट, जिसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 10%, और मार्केट रेट भी कितना है 10% है। तो हमने इस रिसीट को किस तरह रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट बिलो यू कैन सी दैट देयर इज अ टाइमलाइन, वहां पे नीचे क्या बनी हुई है,
टाइमलाइन बनी हुई है, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 3, यानी ये हमारे पास पूरी टाइमलाइन एक जनरेटेड है। 1000 ईयर 1, 1000 फॉर ईयर 2, 1000 फॉर ईयर 3, दीज आर नोन एज इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? $10,000, जो आपको कब मिलनी है वापस? 3 इयर्स बाद। अब $10,000 हमें 3 इयर्स बाद मिलने, तो इसका मतलब है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 10% एनुअली, तो वो तो हर साल मिलेगा। अगर मैं $10,000 का 10% लूंगा तो दैट इक्वल्स टू 1000, कितना होता है? 1000 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है एनुअली मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 ईयर पे भी 1000 मिल रहा है, 2 ईयर से भी 1000 मिल रहा है, थर्ड ईयर पे भी हमें 1000 इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दैट इज द होल केस। और आई हमारा कितना है? दैट इज ऑफ 10%। और एन कितना है हमारे पास? दैट इज ऑफ 3 years. So here you can see that is a present value of ordinary table. PV of interest 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 15%, and these are the whole period. These are the present values given in it. ये किस तरह से जनरेट हुई है, यानी किस वैल्यूज पे जनरेट हुई है? सिंपल सा है कि जब मैंने कहा था कि आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये के बराबर नहीं है, तो अगर मैंने आज का रुपया कल के 1 रुपये के बराबर करना है तो मैं कैसे करूंगा? क्या चीज उसके अंदर ऐड करूंगा या क्या चीज उसमें से माइनस करूंगा? फॉर एग्जाम्पल P, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टोटल बी, यानी आज का अगर 100 रुपए कल के कितने रुपए के बराबर होंगे? मैं कहूंगा जी आज का 100 रुपए कल के 114 रुपए के बराबर होगा, मीन्स टू से सपोज। सो हाउ आई वुड फाइंड द 114, यानी 114 रुपए मैंने कैसे फाइंड किए? सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। एन्युटी इसके फार्मूले भी बनाए गए थे, और इसके साथ ही हमने एक और फार्मूले बनाए थे प्रेजेंट वैल्यू के, जो हमने लास्ट आपने बीबीए साइड पे अपने स्टडी भी किए होंगे। दैट इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी अमाउंट, यानी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एंड सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है, एंड कंपाउंड फैक्टर ऑल्सो. So from this table we have identified that on 8%, 9%, 10% there are certain you can say discount factors on which the value is being given. So what we are going to see is the 10% on third year. 3 साल का है ना हमारे पास, तो 3 साल का मतलब ये है कि 3 साल तक वो हमें 1,000 मिलता रहेगा हर साल। तो इसका मतलब है उसके लिए हमें एन्युटी बनानी पड़ेगी। एन्युटी मींस उसमें जिसमें हमें रेगुलर इंस्टॉलमेंट मिल रही हो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एन्युटी। सो यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू 2.48 इज आर एन्युटी फैक्टर जो निकल रहा है, जो हमें 3 साल का कम्युलेट करके बताएगा। सो ये तो आ गया हमारे पास 10% एन्युटी फैक्टर। देन मल्टीप्लाइंग इट बाय इंस्टॉलमेंट, या जो रेगुलर पेमेंट हो रही है कितनी हो रही है? 1000 हो रही है, तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 1000, द आंसर इज 2487। कितना है? $2487, दैट इज आवर प्रेजेंट वैल्यू। सो दैट इज बीइंग डन कि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ गई है। नाउ ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि देखा था आपने लास्ट में भी क्या था, उसमें 2 चीजें थी, एक प्रिंसिपल अलग था, इंटरेस्ट अलग था। नाउ इंटरेस्ट इज बीइंग सॉल्व्ड, क्या आंसर आया? 2487। नाउ $10,000 वो भी तो 3 साल बाद हो रहे हैं ना, उनको कैसे मैनेज करेंगे? देखिएगा नाउ अब प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर के हमने टेबल ऊपर देख रहे हैं, इट्स नॉट ऑफ एन्युटी फैक्टर। सो व्हाट आर वी आर गोइंग टू डू इज वी सी दैट ऑन 10% 3 years द वैल्यू इज 0.75132, and where it is, that is 10,000 multiplied by 0.75132, that is 7,513। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू आई एट टाइम 0। अच्छा, वन मोर थिंग, हम इंटरेस्ट की पेमेंट्स को भी एट टाइम 0 पे लेके आ रहे हैं आज की वैल्यू पे, और जो हमने ऑलरेडी इसमें प्रिंसिपल लिया था उसको भी एट टाइम 0 पे ही लेके आ रहे हैं। So here you can see that the present value of interest कितना है, present value of principal कितना है, तो नोट करंट मार्केट वैल्यू कितनी निकली? 10,000। कितनी निकली है उसकी? 10,000 is the note current market value. What it means is because कि 10,000 वैल्यू क्यों आई है? इसलिए आई है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगी, बिकॉज मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेटेड वैल्यू, कि जो स्टेटेड वैल्यू है ऑन नोट रिसीवेबल वही मार्केट में प्रिवेल कर रही है। तो नोट इज ऑलवेज बी इशूड एट 10,000। किस पे इशू हो रहा है?
10,000 में इशू हो रहा है. So how we are going to enter is like you can see that the note receivable 10,000 debit and cash credit. यानी हमने नोट रिसीवेबल्स हमने 10,000 ऐड कर दिए और कैश क्रेडिट, यानी ये कैश किसको दे दिए, हमने जो स्कैंडिनेवियन इंपोर्ट्स है जिसको उधार चाहिए था हमने $10,000 उसे कैश दे दिए. ऑन December 1 जैसे ही हमारा क्या पूरा हो रहा है ईयर 1, तो कैश क्या आएगा 1,000 का आ जाएगा कैश, और नीचे क्या कहेंगे हम इंटरेस्ट रेवेन्यू. कौन सा पहले ईयर का इंटरेस्ट आ गया जो पहले ईयर में हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था. Now zero interest bearing notes, there are certain notes which are also being zero interest bearing, कि उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा. वो कौन से इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स होते हैं जिसपे जीरो इंटरेस्ट हो, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. लेट्स हैव सम इलस्ट्रेशन ऑफ इट. Jeremiah Company receive a 3 years $10,000 zero interest bearing note. The market rate of interest for note of similar risk is 9%. Market rate क्या है for interest for a note of similar risk is 9%. How does Jeremiah record that receipt of notes? यानी वो किस तरह किस बेस पे इसकी receipt को record करेगा. You can see that there is also a timeline over there 0, 1, 2, 3, 4. And here you can see that is 0, 0, 0, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा. So ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पे ओनली प्रिंसिपल. सो हमने किसको डिस्काउंट बैक करना पड़ेगा, ओनली प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को लेके आना पड़ेगा बिकॉज आई इज स्टिल देयर. अगर मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं और मैं कह रहा हूं मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, तो बेशक आपने कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया, लेकिन मार्केट में तो उस 10,000 की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम. कि पहले 10,000 थी अगले साल उसकी वैल्यू 10,000 तो नहीं रहेगी, दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो मार्केट तो उसकी वैल्यू रिड्यूस कर रही है, बेशक हम कोई इंटरेस्ट चार्ज ना करो, तो मार्केट उसकी वैल्यू के हिसाब से रिड्यूस कर रही है. आई इज इक्वल टू 9%, कि 9% के हिसाब से वो वैल्यू रिड्यूस हो रही है. So here you can see that again we have a present value discount factor, and here we have a 10,000, and you can see that 9% for 3 years, 10,000 to 0.77218. The answer is 7,721.80. That is a zero interest bearing note. इसे क्या कहते हैं हम, zero interest bearing note. जीरो इंटरेस्ट बेयरिंग नोट कैसे रिकॉर्ड हुआ, डेट ऑफ इशू क्या को क्या कितने का बिका, कैरिंग अमाउंट ऑफ नोट इज 7,721. ओके, रिमेंबर वन थिंग, नोट्स हमेशा रिकॉर्ड अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे हो रहे हैं. अगर ये नोट आपने बेशक 10,000 का दिया है, लेकिन ये हमें उसे देने कितने का है, दैट इज ऑफ 7,721.80. एंड ऑफ ईयर 1 कैश रिसीव नहीं, कोई रिसीव नहीं है. इंटरेस्ट रेवेन्यू 694.96. कैसे आया ये, 7,721.80 को पे इंटरेस्ट क्या था उस टाइम मार्केट का 0.09 का. देखिए हमने कितने का लोन दिया था, $10,000 का. हमने एक्चुअल में उस नोट को कैरिंग अमाउंट क्या रखी थी, 7,721. जो डिफरेंस है वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ 9%. 9% इज द मार्केट रेट. अगर मार्केट रेट ये है तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस था वो एक्चुअली मार्केट रेट ने इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट काट लिए, कि इतनी वैल्यू तो रिड्यूस होनी है ड्यूरिंग द ईयर्स. तो वो वैल्यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें रिकवर भी हो रही है एक तरह से, कि हमारे पास जो वैल्यू हमने जाया कर देनी थी आफ्टर 1 ईयर, वो एक्चुअली ऑलरेडी उससे कम में बेचने से पूरी हो रही है. सो व्हाट डज दैट मीन, 694.96 को किस तरह है, 7,721.80 multiplied by 0.09, so that is 694.96. इसे क्या कहेंगे, 694.96. So what does that mean then? 7,721 plus 694.96 is equal to 8416. So you can see that 8416 is the answer. Interest कितना आया था, 694.96, and discount amortized, यानी amortized क्या है, तो वो कितना था 694.96. मींस टू से कोई चीज ऐसी जो हमने इसमें से माइनस की हो, कैश हमने रिसीव किया, हमने कोई कैश रिसीव नहीं किया, तो ये कितना आएगा, डिस्काउंट अमोर्टाइज में आएगा. तो इसे हम लोग कहेंगे दैट इज 8416, 8,416.76. और ये कैसे आया, 7,721.80 प्लस 694.96. एंड ऑफ ईयर 2 अगेन जीरो कैश, क्योंकि देखिए ईयरली कोई पेमेंट नहीं हो रही तो सारी में जीरो कैश रिसीव्ड आएगा, बट इंटरेस्ट इज बीइंग देयर. मार्केट ने जो आपके लिए नोट को जो वैल्यू कम लगाई थी
वो बिकॉज ऑफ दैट कि भाई आप उसके लिए वो क्या लेके जाएगा 7721.80, वो तो आपसे इतने का लेके जाएगा, लेकिन वापस कितने करेगा, वो वापस पूरे 10,000 यूएस डॉलर्स करेगा वापस, कि जितने भी यूएस डॉलर्स बनते हैं उन सारों को वो वापस करेगा। तो दैट बिकम्स अगेन 8416.76 मल्टीप्लाई इट बाय 0.09, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे 757.51, यानी 757.51। अगेन डिस्काउंट अमोर्टाइज, बिकॉज कोई कैश नहीं दिया गया तो वो क्या कहलाएगा डिस्काउंट अमोर्टाइज्ड, और वो ऐड कर दिया जाएगा किसमें 8416.76 में, और द आंसर विल बी 9174.27। एंड ऑफ ईयर 3 आ गया, 825 again comes with the same thing, 825.73 is also being discount amortized as there is no cash involved, so the value would be equal 10,000. Means to say कि हमने उसे दिए कितने थे 7721.80 और हमें वापस कितना आया 10,000 कंप्लीट आया, और जब हमारे पास 10,000 कंप्लीट आए सो द डिफरेंस विल बी कवर्ड बाय द मार्केट रेट, कि जो हमें मार्केट रेट पे रिटर्न, देखिए मैंने अगर किसी को लोन दिया, मैं आज की जरूरत कहीं पे मूव कर रहा हूं ना, यानी आज की जरूरत छोड़ के मैं उसकी जरूरत पूरी कर रहा हूं, क्लियर, कि हम लोग यही कहेंगे कि आज की जो जरूरत है उसी के हिसाब से हमने कल की जरूरत को हम लोगों ने फोरगो कर दिया, यानी कि जो आज की मेरी जरूरत थी मैं कहा नहीं आज नहीं खर्चा करते, इस पैसे को उसे देते हैं, उसे जरूरत है, ये पैसा कल मेरे पास आएगा मैं तब इस्तेमाल कर लूंगा। जब मैंने आज की जरूरत फोरगो की तो मुझे उसके ऊपर कोई बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो वो बेनिफिट इज द मार्केट रेट, वो मेरा बेनिफिट है कि मुझे मार्केट रेट के हिसाब से बेनिफिट होना चाहिए, क्योंकि 10,000 मैंने डॉलर्स मैंने जो लगाए हैं वो एटलीस्ट अपनी 10,000 पूरी वैल्यू तो रखें, ये ना हो कि मेरे पास जब वो पूरे वापस आए तो उसकी 10,000 वैल्यू नहीं 10,000 से कम वैल्यू हो। अगर मेरे पास पहले एट टाइम 0 10,000 की 10 चीजें आ रही थी तो पता लगा आफ्टर 3 इयर्स 10,000 की मेरे पास सिर्फ 6 या 7 चीजें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि वहां पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ गया, तो वो तो मेरे लिए कवर अप होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सोल्ड एट इट्स लोअर डिस्काउंट वैल्यू। जनरल एंट्रीज फॉर जीरो इंटरेस्ट बेयरिंग नोट, प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली 7721.80, नोट्स रिसीवेबल 10,000 थे, डिस्काउंट ऑन नोट्स रिसीवेबल कितना निकला 2278, एंड कैश कितना दिया गया 7721, कितना कैश उसे दिया गया 7721.80, एंड आफ्टर दिसंबर ईयर 1 हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल 694.96 से डेबिट कर देंगे, एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू ऐड करेंगे 694.96। याद रखें ये इंटरेस्ट हमें शायद पहले ही मिल गया क्योंकि हम उतना पे ही नहीं कर रहे उसे, लेकिन रियलाइज कब होगा जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, और दिसंबर 1 में 1 ईयर पूरा होता है और 1 ईयर बाद हमने 694.96 जो है वो हमने रियलाइज कर लिया है। कैसे आया, दैट इज 7721.80 मल्टीप्लाई बाय 9%। Now, interest bearing note, another example, you can see that Morgan Corporation make a loan to Marico and receive an exchange of 3 years 10,000 note bearing interest at 10% annually. Now, what the stated rate is 10%. The market rate of interest for a note is of similar risk is 12%. Now, there is a difference. Stated rate is lower, market rate is higher. So that means the bond would go on what? It should go on discount. किस पे जाना चाहिए इसे, डिस्काउंट पे। The market rate of interest for note of similar risk is 12%. How does Morgan record the receipt of that note? Now again you can see that there is a similar timeline and principal amounts जो similar तौर पे वर्क कर रहे हैं। Now again we have the annuity factor, annuity के लिए अप्लाई करें, annuity के लिए हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, इंटरेस्ट रेट कितना था 10%, 10% था, और 10% को हमने क्या किया था, किस तरह फाइंड किया था, 10,000 का 10% लिया था, तो दैट वुड बी 1,000 पर ईयर। 1,000 पर ईयर है तो हर साल मिलना है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया उसके अंदर, एन्युटी फैक्टर यूज किया। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.40 जो ऊपर निकल रहा है 12% के साथ, सो हमने 12% के साथ उसका फैक्टर मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2.40183, दैट इज 2,402, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है फॉर इंटरेस्ट। नाउ देयर इज टू थिंग्स, हमारे पास स्टेटेड रेट भी तो था ना, और हमारे पास मार्केट रेट भी था। विच रेट वी आर यूजिंग,
वी आर एक्चुअली यूजिंग द मार्केट रेट। हम किसको यूज कर रहे हैं? मार्केट रेट को यूज कर रहे हैं कि क्या हमारे पास मार्केट रेट एग्जिस्ट करता है। हमने हमेशा वैल्यूएशन बेस्ड ऑन मार्केट करनी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटेड वैल्यू। स्टेटेड वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए यूज होगा। जैसे हमने अभी कहा था कि 10% था ना आपका स्टेटेड रेट, तो 10,000 का 10% लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 1,000। सो दैट 1,000 कहां से निकला है? यूजिंग द स्टेटेड रेट। हमने स्टेटेड रेट को यूज करते हुए 1,000 निकाला है। एंड देयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि हमने सिर्फ इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, बल्कि ऑल्सो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल की भी। और प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 था, उसके लिए हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला लगेगा, दैट इज विल बी मल्टीप्लाइड एंड आंसर विल बी 7118। नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड देम, दैट इंक्लूड्स टू द 9520, जो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ये डिस्काउंट में जाएगा। मींस हमने लोन कितना था? 10,000 यूएस डॉलर्स का ना, लेकिन वैल्यू कितनी आ रही है उसकी? 9,520, मींस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू। तो जब भी लोअर देन फेस वैल्यू हो तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डिस्काउंट। यानी हमने इश्यूएंस की है उसकी एट डिस्काउंट, यानी उसे हमने कितनी हमने लोन उसे प्रोवाइड किया या नोट रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे दिए हैं, वो है 9,520, एंड द डिफरेंस इज नोन एज डिस्काउंट। Now the notes receivable is 10,000, then again discount on notes receivable is 480 and cash is given by 9,520, यानी उसे कितना कैश पे किया गया? 9,520। बाकी जो हो गया वो क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया है। Now here you can see that again that's the effective interest method कि किस तरह हम लोग schedule of notes of discount amortization बना रहे हैं। These are actually a schedule of discount of notes amortization कि नोट डिस्काउंट अमोर्टाइजेशन कैसे करते हैं। आप देखें डेट ऑफ इशू कितनी थी? 9,520। कितनी अमाउंट का हमने उसे इशू की है, जो या वैल्यू लगाई है नोट्स रिसीवेबल की? 9,520। एंड ऑफ ईयर 1,000 रिसीव हुए। इंटरेस्ट रेवेन्यू किस तरह आए गौर से देखिएगा, 9,500 मल्टीप्लाई बाय 12%। क्या मार्केट रेट ने उस पर कितना पे किया? 9,520 पे, तो हमने कहा जी वो पे किया 1142, और हमने डिस्काउंट अमोर्टाइज कैसे निकाला है? 1142 माइनस 1,000 की जितना कैश रिसीव हो गया और जितना डिफरेंस है जो उसने पे नहीं किया। और हम ये डिफरेंस कहां से पूरा करेंगे? यू बाय लोअरिंग द प्राइस और वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट, जो हमने 480 का एडिशनल लोअर पे सेल किया है। एंड ऑफ ईयर 2, 1,000 अगेन रिसीव्ड। Interest revenue is again 9,662 multiply it by 1,000, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाइड बाय 1,000। अच्छा, वन मोर थिंग, 9,500 से 9,662 कैसे हो गया? कैरिंग आउट नोट था 9,520, तो हमने 142 उसकी प्राइस लोअर से कमाया था ना, लेकिन एट ईयर 1 पे वो अब रियलाइज हो गया हमें। जब वो हमें रियलाइज हो गया ईयर 1 पे, तो हम उसे एड अप कर देंगे, तो ये आंसर क्या बन जाएगा? 9,662, और उसके ऊपर हमने जब 12% अगेन इंटरेस्ट लगाया तो आंसर वुड बी 1159। अगेन द डिफरेंस इज 159, मींस अब 480 में से पहले क्या रिसीव हुआ था हमें? 142, अब क्या रिसीव हुआ है? 159। सो द आंसर वुड बी नाउ 9821, बिकॉज ये भी हमें रिसीव हो गया है, तो 9,622 प्लस 662 प्लस 159, 9821, एंड 9821 है। अगेन 1,000 इंटरेस्ट मिला है, 1179 किस तरह आया? 9821 मल्टीप्लाइड बाय 12%, एंड देन डिफरेंसिंग विद द कैश रिसीव द 179, तो रिमेनिंग 480 में से कितना रिसीव हुआ इसमें? 179, और उसके बाद हमारी वैल्यू टोटल कितनी हो गई है? 10,000। मींस कुछ डिस्काउंट अमोर्टाइज हुआ है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसीव हुआ है। जब भी हमारा एक साल गुजरता था तो हमने कहा जी नाउ दैट डिस्काउंट इज नाउ वी हैव, यानी ये अमोर्टाइज होके हमारे पास आ गए। और कुछ हमारे पास क्या होता था? कैश रिसीव होता था, जिससे हम रिवर्स कर रहे थे। मींस टू से इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारे पास कितना आना होता? 1142, जिसमें से हर साल के आखिर में 1000 मिल जाते थे, 142 बच जाते थे। और जब भी वो 142 बच जाते थे, वो कहां से पूरा होता था? वो वहां से पूरा होता था जितनी प्राइस हमने लोअर पे ये नोट रिसीवेबल उसे इशू किया था। 480 के प्राइस से लोअर पे इशू हुआ था ना, सो दैट 142 विल बी कवर्ड बाय दैट लोअरिंग प्राइस। बट ये रियलाइज कब होगा? एट द एंड ऑफ ईयर 1। सो इसीलिए हम उसे एट द एंड ऑफ ईयर 1 एड अप करते थे।
Now these are the entries. You can see that journal entry for interest bearing note, note receivable 10,000 था, डिस्काउंट कितना 480 का हुआ, कैश कितना हुआ 9,520 का। एंड ऑफ ईयर 1 पे क्या एंट्री पास होगी, कैश 1000 का रिसीव हुआ है, आगे इंटरेस्ट सॉरी डिस्काउंट ऑन नोट्स रिसीवेबल वो कितना हुआ है 142, क्योंकि देखें सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पे अब फेस वैल्यू पे बात नहीं, अब डिस्काउंट पे कैश हमें मिला है 9,520 और डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल ये भी तो साथ मिला है जो हमें 142 था, तो हमारा इसका मतलब है हमें टोटल रिसीविंग एक्चुअली थी 1142, बिकॉज इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना वहां पे शो हो रहा था 1142, और जब वो इंटरेस्ट रेवेन्यू शो हो रहा था इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास कितना आ रहा है इसमें, दैट इज इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 1142 एंड दैट इज आवर एंट्री फॉर द इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स विद which have asked values lower than or which has been issued at that discount, जिसे किस पे इशू किया गया, डिस्काउंट पे इशू किया गया। Now there is a differences regarding US GAAP and IFRS. US GAAP versus IFRS के अभी तक जितने हमने रूल्स पढ़े इसमें US GAAP और IFRS में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। इन जनरल IFRS and GAAP are very similar with respect to account receivable and notes receivable. Differences are highlighted below. US GAAP allow fair value option for accounting for receivables. वो क्या कहता है कि fair value options का allow करता है। IFRS restrict the circumstances in which a fair value option for accounting for receivable is allowed, यानी कि वो कुछ circumstances बताता है कि जिसके अंदर fair value work कर सकती है, वो हर circumstances में नहीं कहता कि आप fair value यूज करें। Unlike GAAP, US GAAP does not allow receivable to be accounted as available for sale investment. वो कहता है वो कभी भी allow नहीं करता कि इसे आप रखें available for sale investment की तरह। However, on the other side, in the year between 2010 and 2012, company may account for receivable as available for sale. ये allow करता है। Investment if approached in elected initially after January 1, 2013, this treatment is no longer allowed. कि ये जो treatment है ये no longer allowed में आता है। US GAAP requires more disaggregation of account and note receivables in balance sheet or loss. That is also being a difference. So these are the two differences that exist among GAAP and IFRS. So you can see that these are the whole gaps and these are the differences that exist regarding notes receivables. Recognitions of notes receivables further देखते हैं। notes receivables for property goods and services, कुछ notes receivables property goods and services के लिए भी issue किए जाते हैं। In a bargain transaction entered in at the arm's length, the stated interest rate is presumed to be fair. कि stated interest rate क्या कहलाता है, presumed to be fair unless no interest rate is stated, कि अगर जो stated interest rate है वो presume किया जाता है fair है, लेकिन अगर कोई interest rate नहीं given है तो तब क्या होगा, stated rate is unreasonable, बहुत ज्यादा rate है, आपने 50-60% लगा दिए। फेस अमाउंट ऑफ नोट इज मटीरियली डिफरेंट फ्रॉम करंट कैश सेल प्राइस, आपकी जो फेस अमाउंट है वो बहुत ज्यादा ऑल टुगेदर डिफरेंट है सेल प्राइस से, बहुत ज्यादा फर्क पे रखी है आपने, आइदर बहुत लोअर या बहुत हायर रख दी है सेल प्राइस से। सो दैट हैज एन इफेक्ट ऑन ओवरऑल योर नोट्स ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, यानी कि बाकी जगह पे ठीक होता है, स्टेटेड रेट्स हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज स्टेटेड नहीं है इस तरह के कामों में देन देयर इज एन इशू। Recognition of notes receivables, then OSIS Development, that's also being an illustration. OSIS Development Corporation sold a corner lot for Rusty Pelican as a restaurant site. OSIS accepted in exchange of 5-year note having a maturity value of $35,247 and no stated interest rate. The land originally cost OSIS $14,000. At the date of sale of land has a fair market value of $20,000. OSIS uses a fair market value of land $20,000 as a present value of note. OSIS therefore recorded the sale as, कैसे रिकॉर्ड हुए गौर से देखें दोबारा से। OSIS डेवलपमेंट को है sold a corner lot to Rusty Pelican, यानी कि रस्टी पेलिकन एज अ रेस्टोरेंट साइट, यानी कि कॉर्नर लॉट जो थी उसने एज अ पेलिकन को सोल्ड कर दी फॉर अ रेस्टोरेंट साइट, यानी कि रेस्टोरेंट एज अ रेस्टोरेंट साइट उसे सोल्ड आउट कर दी। ऑसिस एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज ऑफ 5 years, यानी कि ऑसिस ने क्या हुआ
कि उसे दे दी जगह और क्या किया, उसे हैविंग मैच्योरिटी वैल्यू नोट्स रिसीवेबल उसे इशू कर दिया, जो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी $35,247 एंड नो स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, कोई स्टेटेड इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर नहीं था। द लैंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 20,000, सॉरी लैंड ओरिजिनल कॉस्ट इज $14,000 एट द डेट ऑफ सेल ऑफ लैंड, द फेयर मार्केट वैल्यू इज 20,000, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 20,000। अब यहां पे देखें कि उसने जो मैच्योरिटी नोट रिसीवेबल इशू किया वो कितने का है 35,247, लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट 14,000 है, मार्केट वैल्यू 20,000 है, और यूज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड इज 20,000, फेयर मार्केट कितनी है $20,000 एज अ प्रेजेंट वैल्यू, उसने क्या किया है एज अ प्रेजेंट वैल्यू यूज किया है। और देयरफॉर रिकॉर्ड द सेल्स एज 35,247 माइनस 20,000 इक्वल्स टू $15,247, यानी उसने सेल्स इतने की रिकॉर्ड की है। नोट रिसीवेबल्स दैट इज 35,247, डिस्काउंट ऑन नोट रिसीवेबल्स कितना हुआ है 15,247 एंड द रिमेनिंग वुड बी गिवन एज लैंड 14,000, क्योंकि लैंड की 14,000 क्या थी ओरिजिनल कॉस्ट थी, और जो ओरिजिनल कॉस्ट हो आपने उसी को ही लेके चलना है, यानी इन दोनों को आप एड अप करें तो यू दैट कंबाइंस टू फॉर्म योर ओवरऑल ट्रांजैक्शन। एंड वन ऐसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दैट इज ऑफ 6,000, कितने का सेल में गेन हो रहा है आपको 6,000 का, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 14,000 की थी, बिकी कितने की 20,000 की, तो इसका मतलब है 6,000 का तो गेन आ गया। आपने इसके अगेंस्ट नोट कितना इशू किया हुआ था 35,247, जिनमें से आपने क्या किया, अगर आपने ये गेन ऑन सेल और मार्केट वैल्यू भी उसकी निकाल दें तो पीछे कितना बचता है, जो बचता है वो हमने आप ऊपर लिख दिया कि दैट इज अ डिस्काउंट ऑन नोट्स रिसीवेबल। कितना डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट ऑन 15,247, दैट इज नोन एज बीइंग डिस्काउंट व्हेन देयर इज नो स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, यानी कि यहां पे कोई भी अगर स्टेटेड रेट नहीं है तो देन द नोट डिस्काउंट रिसीवेबल, डिस्काउंट ऑन नोट्स रिसीवेबल वुड बी रिकॉर्डेड लाइक दिस। ठीक है, कि जितने का भी हमें हमारे पास डिस्काउंट आएगा। वैल्यूएशन ऑफ नोट्स रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म रिपोर्टेड एज नेट रियलाइज्ड वैल्यू, यानी शॉर्ट टर्म को किस तरह रिपोर्ट करना है नेट रियलाइज्ड वैल्यू, सेम एज अकाउंटिंग फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स। लॉन्ग टर्म एफएएसबी रिक्वायर्स कंपनी टू डिस्क्लोज नॉट ओनली देयर कॉस्ट बट आल्सो देयर फेयर वैल्यू इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहते हैं सिर्फ कॉस्ट को आपने शो नहीं करना बट ऑल्सो द फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंट, एफएएसबी के अंदर ये दोनों चीजें कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंट को भी साथ साथ शो कर रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑप्शंस, करंट कंपनीज हैव द ऑप्शन टू यूज फेयर वैल्यू, कंपनी के पास क्या ऑप्शन होती है टू यूज फेयर वैल्यू एज द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, क्या होती है वो एज अ बेसिस ऑफ मेजरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उसे हम कह सकते हैं कि दैट इज द फेयर वैल्यू ऑप्शन वुड बी द बेसिस फॉर मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो भी फेयर वैल्यू है उसको बेसिस ले सकते हैं एज द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Now there is an illustration, another one. Assume that the Escobar company has notes receivables that have fair value of 810,000 and carrying amount is 620,000. Escobar decided on December 31st, 2012 to use the फेयर वैल्यू ऑप्शन, क्या यूज करेंगे फेयर वैल्यू ऑप्शन फॉर दीज रिसीवेबल्स, इन सारे रिसीवेबल्स के लिए वो फेयर वैल्यू ऑप्शन यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वैल्यूएशन ऑफ दीज रिसेंटली एक्वायर्ड रिसीवेबल्स एट December 31st, 2012. Escobar make in an adjusting entry to record the increase in value of notes receivables. ये क्या रिकॉर्ड करे, increase in value of notes receivables. तो receivables to and to record the unrealized holding gain are as follow. Note receivables 190,000 and here it is unrealized holding gain or loss. पहले क्या था नोट रिसीवेबल्स की फेयर मार्केट वैल्यू 810, लेकिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी 620। उसने कहा जब ये चेंज करना है, हमने क्या करना है, इसे हमने चेंज करना है कि हमने फेयर वैल्यू की तरफ जाना है, तो इट मींस हमने जो एडिशनल डिफरेंस है 810 और 620 के बीच में उसको हमने दोबारा नोट रिसीवेबल्स में एड अप कर देना। हाउएवर द कैरिंग अमाउंट कितनी थी 620, पहले कितनी एंटर थी नोट रिसीवेबल्स में दैट इज 620,000, लेकिन अब कितनी एंटर हो जाएगी टोटल होके 810,000, और बाकी को कर देंगे हम अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस और इनकम, तो वो हमारे पास आ जाएगी 190,000। तो 190,000 को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, नोट रिसीवेबल्स को हम डेबिट कर देंगे।
डिस्पोजिशन ऑफ अकाउंट्स एंड नोट रिसीवेबल्स की डिस्पोजिशन ऑफ अकाउंट्स एंड नोट रिसीवेबल्स क्या चीज होती है? उनमें ट्रांसफर अकाउंट्स और नोट रिसीवेबल्स टू अनदर कंपनी फॉर कैश। बहुत दफा ये होता है कि आप सारे के सारे नोट रिसीवेबल्स पे कहते हैं कि ये आपका हक है, इनसे आप पैसे लेना, मुझे भी फिलहाल इनके अगेंस्ट लोन दे दो। दैट इज नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ अकाउंट्स एंड नोट्स रिसीवेबल्स। रीजंस क्या है? कंपटीशन मींस कंपटीशन बढ़ जाता है, आपको फॉरेन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता होता है कि अगर मेरे पास फंड्स ना आए, तो जाहिर बात है मेरे एकदम से मार्केट में शॉर्टेज आना शुरू हो जाएगी, मेरी प्रोडक्शन को स्टॉप होने का खतरा है। तो आप कंपटीशन की वजह से फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल्स अगले को ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं आप इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दे। So that means because of competitions, selling receivables because money is tight। बहुत दफा टाइट सिचुएशन में आप एग्जिस्ट कर जाते हैं तो आपको करंट एसेट्स कुछ बेचने पड़ जाते हैं और करंट एसेट में से आप सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बिलिंग कलेक्शंस आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। ये बहुत दफा होता है कि सारे के पास जाओ, परचूनों की तरह उनसे कलेक्शन करो, लेकिन ये सारी चीजें जो है कई दफा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप इससे कहते हैं कि यार कोई और ले जाए काम, हमारी जान छुट जाए। ट्रांसफर अकम्प्लिश्ड बाय सिक्योर्ड बोरोइंग। किस तरह ट्रांसफर की जाती है? या तो सिक्योर्ड बोरोइंग कर ली जाती है। सिक्योर्ड बोरोइंग क्यों कहा जाता है? बिकॉज दैट बोरोइंग इज बैक्ड बाय अकाउंट रिसीवेबल्स, सो इट मींस इट इज ऑलरेडी बीइंग सिक्योर्ड। सेल ऑफ रिसीवेबल्स आर देयर, कि सेल ऑफ रिसीवेबल्स की वजह से भी हो जाती है ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल्स हम आगे सेल कर देते हैं। दैट वाज आल्सो बीइंग वन ऑफ द थिंग। नाउ दैट इज द फैक्टर्स अरेंजमेंट। अच्छा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने आगे अकाउंट रिसीवेबल्स दे देने, उसे एक्चुअली कहा जाता है दैट इज नोन एज फैक्टरिंग अरेंजमेंट। उसे एक दूसरा नाम दिया जाता है फैक्टरिंग अरेंजमेंट। सप्लायर, ट्रांसफरर, रिटेलर, फैक्टरिंग, ट्रांसफरी। फैक्टरी ट्रांसफरी क्या कर रहा है? यहाँ पे गौर से देखें ऊपर से कि अकाउंट रिसीवेबल्स, आपने रिटेलर ने अकाउंट रिसीवेबल्स किसको दे दिए? सप्लायर को। सप्लायर वो रिसीव करेगा अकाउंट रिसीवेबल्स और कैश किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। अगेन सप्लायर ने यहां से मर्चेंडाइज पिक की और मर्चेंडाइज रिटेलर को प्रोवाइड की, और अकाउंट रिसीवेबल्स किसको दे रहा है? फैक्टर को दे रहा है, और फैक्टर कैश सप्लायर को दे रहा है। तो एट द एंड यू हैव योर ऑन मनी, कि आपके पास पूरी कंप्लीट मनी रिसीव हो जाती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी दैट फ्रॉम रिटेलर टू फैक्टर, फैक्टर टू सप्लायर, कि यानी जो भी आपके पास आ रहा होगा वो फैक्टर टू सप्लायर पे आप कवर अप कर रहे होंगे, और वहीं से आप इसे ओवरऑल इस पूरे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें से अपना कैश रिसीव कर लेते हैं। नाउ डिस्पोजिशन ऑफ अकाउंट्स एंड नोट्स रिसीवेबल्स, के डिस्पोजिशन ऑफ अकाउंट्स एंड नोट रिसीवेबल्स के लिए सिक्योर्ड बोरोइंग की लेट्स सी अनदर एग्जांपल। March 1, 2012 Howard Mills Incorporation provides or assign $700,000 of its account receivables to Citizen Bank as a collateral for $500,000 note. Howard Mills continues to collect the account receivables. The account debtors are not notified of the arrangement. Citizen Bank assesses a finance charge of 1% of account receivables and interest on note of 12%. Howard make the monthly payment to bank for all of it collect on the receivables. Now अब क्या करे? Howard जो है वो इनकॉर्पोरेशन ने क्या किया है? 7,000 ऑफ इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स दे दी हैं सिटीजन बैंक को, और उससे क्या ले लिया? $500,000 नोट। हाउवर्ड कंटिन्यूज टू कलेक्ट द अकाउंट रिसीवेबल्स। द अकाउंट डेटर्स आर नॉट, उन्हें नहीं बताया गया जिनकी अकाउंट रिसीवेबल्स रहते थे कि ये अरेंजमेंट हो चुका है। सिटीजन असेस अ फाइनेंस चार्ज ऑफ 1% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, वो क्या करेगा? इसका फाइनेंस चार्ज लेगा, एंड एन इंटरेस्ट ऑन नोट ऑफ 12%। जो नोट उसने आपको दिया है, जिसके अगेंस्ट आपको पैसे दिए हैं, वो कितना है? 12%। Howard make monthly payment to a bank for all cash it collects on the receivables, यानी कि वो सारी मंथली पेमेंट कर रहा होता है for all the cash that it has received collect as receivables. So now here you can see that Howard and Citizen transfer of account receivables and issuance of note on March 1, 2012. कैश कितना था? 493,000। फाइनेंसिंग चार्जेस 1% ऑफ नोट रिसीवेबल्स, तो 1% ऑफ नोट रिसीवेबल्स ये तो 500 का, तो उसका सॉरी ऊपर 493,000 का हमने 7,000 निकाला, और निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आया दैट इज यू कैन सी दैट द 1% ऑफ 700,000 कितने का था? वो नोट ट्रांसफर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स 700,000 के, और हमारे पास उसमें से कैश कितना रिसीव हुआ? 493,000, बिकॉज 7,000 तो उसके पास चला गया एज अ इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी एज अ सर्विस चार्ज, एंड नोट रिसीवेबल्स हमें नोट पेबल कितने का मिला? 500,000 का।
और उसके बाद क्या हुआ, नोट रिसीवेबल 500,000, फाइनेंसिंग रेवेन्यू 700,000, ये सिटीजन की एंट्री है, एंड कैश 493,000. कलेक्शन इन मार्च ऑफ 440,000 ऑफ अकाउंट लेस कैश डिस्काउंट ऑफ 6,000 प्लस रिसीट ऑफ 14,000 यूएस डॉलर सेल्स रिटर्न. कैश कितना हो गया नाउ 434, सेल्स डिस्काउंट कितना दिया आपने 6,000 का, सेल्स रिटर्न कितने के हुए 14,000 के हुए, अकाउंट रिसीवेबल्स कितने के हुए यहाँ पे नाउ 454,000. और ये एंट्री सिटीजन पास नहीं करेगा बिकॉज ये फॉर द मंथ एंड है जिसमें हमारे पास कैश कितना रिसीव हुआ है 434 का, जिसमें से हमने कैश डिस्काउंट भी दिया है, सेल्स रिटर्न भी दिए हैं. तो ये सारे के सारे हमने क्या किए हैं, ओवरऑल अकाउंट रिसीवेबल्स इतने के कम हो गए. रेमिटेड मार्च कलेक्शन प्लस अक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक. अब बैंक को सारा कुछ जाना है, तो इंटरेस्ट कितना जाना है उसे, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 5,000. कैसे निकला 5 लाख का उसने नोट बियरिंग 12% से हमने मल्टीप्लाई किया 1 मंथ का ओनली 1/12. सो हमारे पास कितना आ गया 5,000 और ऊपर से हमारे पास कितने कलेक्शन हुई थी नोट रिसीवेबल से 434. ये सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे और वो क्या गारंटी करेगा 439,000. उसमें से कुछ उसका इंटरेस्ट रेवेन्यू होगा, कुछ उसका नोट्स रिसीवेबल्स उसके पास वापस चले जाएंगे. देन कलेक्शन इन अप्रैल कुछ हुई है, कैश कितना हुआ है 244,000. अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, यहाँ डाउटफुल अकाउंट्स आ गए, उसमें से 7 लाख का जो यूएस डॉलर का जो हमारे पास नोट रिसीवेबल था उसमें कुछ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हो गए. कितने आ गए 2,000 के. तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितना अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है 246,000. नो एंट्री पास्ट. और ये जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले निकालेंगे, कितना है अगेन 66,000 जो भी आपके पास वैल्यू बची है, क्योंकि हमने कितना पे कर दिया उसे, हमने उसे काफी सारा पे कर दिया. कितना पे कर दिया हमने फॉर नोट्स रिसीवेबल दैट इज 434,000. तो बाकी जो पीछे बचेगा वो कितना रह गया हमारे पास 66,000. और हमने 66,000 पे अब हमने उसे 12% इंटरेस्ट पे किया, तो दैट इज 6% ऑफ 1 मंथ. और हमारे पास टोटल कैश कितना दिया उसे हमने 66,000 एंड कैश 66,660, interest revenue 660, notes receivable 66,000. So that is the whole transaction for the secured borrowing. कि जब भी secured borrowing होगी वो हमेशा इस तरह से ही होगी. Secured borrowing exercise, let's see another one. On April 1, 2012, Prince Company assigned $500,000 of its account receivables to the Third National Bank as collateral for $300,000 loan due on July 1. The assignment agreement calls for Prince Company to continue to collect receivables. Third National Bank assesses a finance charge of 2% of account receivables and interest on loan is 10%. Prepare April journal entries. Prepare the journal entries for Prince collection of 350,000 of account receivable during the period of 1 through 30th June. On July 1, Prince paid Third National Bank all that was due from loan to secured in April. So how these entries are being made? First one, कैश कितना मिला हमें 293 लाख का हमने नोट रिसीवेबल लिया था, जिनमें से 2% हमारे पास क्या जाना था उसका ओवरऑल फाइनेंसिंग चार्जेस. तो 2% ऑफ 500,000 जो टोटल हमारे पास नोट रिसीवेबल थे वो 10,000, तो 290 दैट इज 300,000. और नेक्स्ट टाइम कैश कितना हमारे पास आ रहा था वो दैट वाज 350,000 अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी इतने अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास रिसीव हो गए. सो नाउ What we are going to do is हमने ये आगे फॉरवर्ड करने. तो कैसे फॉरवर्ड करेंगे कि नोट्स पेएबल उसके पास कितना था 300,000 का, वो हमने पे किया, प्लस साथ ही कितना उसके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस किया था. इंटरेस्ट एक्सपेंस मींस 300,000 आउटस्टैंडिंग था, 10% आपके पास इंटरेस्ट रेट था, 3 महीने की बात थी बिकॉज एंड हुआ है जून में. 3/12 किया तो आंसर आया 7,500. सो दैट मीन्स 3 लाख प्लस 7,500, तो उसे रिसीविंग कितनी हुई है 3,07,500 की. Sale of account receivables are also there. Factors are finance companies और बैंक, they buy receivables from business for free. यानी factor से होते हैं यहाँ पे use किया जाता है. Customer and then companies manufacturers. First of all companies request a credit review. Credit review होता है and then they have given the advance cash by the factor. Factor give कर देता है, यहाँ से वो ship कर देते हैं goods customer को और place किया हुआ होता है उन्होंने order, और payment किसको कर रहे होते हैं at the end वो factor को कर रहे होते हैं. In other words, first of all manufacturer ship the goods, they first of all the customer pay the order, then they ship the goods. Goods जहाँ पे ship हो जाते हैं वो एडवांस कैश की रिक्वायरमेंट देते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले भी कंपनी अपनी रिव्यू ऑफ क्रेडिट्स की रिक्वेस्ट करता है और वो इसे एडवांस कैश देते हैं, और एट द एंड कस्टमर किसको पे कर रहा होता है, फैक्टर को पे कर रहा होता है.
Now, sales without recourse. Purchaser assume risk of collection. Risk of collection assume करो, the transfer is outright sale of receivable. Seller record loss on sales. Seller use due from factor receivable account to cover discount, returns and allowance. These are the sales without recourse. And sales with recourse, seller guarantee payment to purchaser. Seller क्या करता है, गारंटी कर रहा होता है payment to purchaser. Financial component approach used to record transfer. Financial component approach use की जाती है to record the transfers. Now there is another illustration. Crest Textile Incorporation factors $500 of account receivable with commercial factors incorporation on a without recourse basis. कि कोई recourse उसने involve नहीं किया. Commercial factor assesses a finance charge of 3% of amount of account receivables and retain the amount equal to 5% of account receivables for probable adjustment. Crest Textile and commercial factors make the following journal entry for receivable transferred without recourse. अब यहाँ क्या एंट्री हो रही है, कैश कितना है यहाँ पे, अब उसे कितना फैक्टर दिए थे, 500,000 यूएस डॉलर्स. सो यहाँ पे हमारे पास ड्यू फ्रॉम फैक्टर और लॉस ऑन नोट रिसीवेबल्स, दो चीजें हमारे पास यहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी क्रेस्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं. क्रेस्ट में क्या है जी, ड्यू फ्रॉम फैक्टर कितना है 25,000, दैट इज द 5% ऑफ 5 लाख, दैट इज द ड्यू फ्रॉम फैक्टर. एंड अनदर वन इज 3% इज ऑफ अमाउंट रिसीवेबल्स एंड रिटेन, यानी कि फाइनेंसिंग चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, 3% ऑफ 5 लाख. सो वो हमने निकाले, तो दैट being equals to the 15,000, that is the loss on sale of receivables, because ये financing charges हमें addition पड़ रहे हैं. तो cash due from factor, loss on sale of receivables and account and notes receivables is equal to 5 lakh. इसके रिवर्स में वो क्या एंट्री पास करेंगे, account notes receivable 5 lakh, due from Crest Textile that is 25,000. क्यों मिल रहा टेक्सटाइल फर्म से, because of adjustment. and financing revenue कितना मिला उसे 15,000 and cash कितना रिसीव हुआ है 460,000. in other words total entry reverse जो है वो कौन कर रहा है, commercial factors incorporation. Now sale of revenue, another illustration. Assume Crest Textile sold the receivable on with a recourse basis. Crest Textile determines that this recourse obligation has fair value of 6,000. To determine the loss on the sale of investment, Crest Textile compute the net proceed from the sales. Cash received कितना हुआ 460,000. Due from factor कितना था 25,000. Less recourse obligation कितना था 6,000. वो इसमें से हमने क्या किया, वापस माइनस कर दिया. तो नेट प्रोसीड्स कितने हुए हमारे पास 479,000. कैरिंग बुक वैल्यू कितनी थी 500,000. नेट प्रोसीड्स कितने थे 479,000. जो डिफरेंस था उसे हम क्या कहते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. कि जितना भी हमारे पास लॉस आया वो ये इतना आया है, बिकॉज नेट प्रोसीड्स आर 479. ये हमारे पास लॉस आ गया, बिकॉज ऊपर आप देख सकते हैं डिटरमिन दैट दिस रिकोर्स ऑब्लिगेशन हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 6,000. और यानी कि जितना भी रिकोर्स की ऑब्लिगेशन है उसकी फेयर वैल्यू 6,000 थी. टू डिटरमिन द लॉस ऑन सेल ऑफ रिसीवेबल वी हैव टू डू दिस. Sale of receivable. Now prepare journal entries for both Crest and commercial factor for receivables sold with recourse. तो recourse के लिए क्या entry होगी 460,000, then due from factor and then loss on sale of investment 621,000 and account receivables is total of 500,000. These are the things कि क्यों उसे loss कितना हुआ sale of receivables में 21,000 का, और उसके बाद due from factor कितने थे 25,000 थे, cash कितना receive हुआ है 460,000. And recourse liability is there 6,000 की recourse liability exist करती है, that is of 6,000. Account receivables कितने होंगे यहाँ पे जब एंटर करेंगे 500,000. Due from Crest Textile कितना है 25,000. Financing revenue से कितना मिला 15,000. That is the entry passed for the sales of receivables. And the cash is also being there obviously. जो वहाँ से cash था तो यहाँ पे receive हुआ है तो revert हुआ है तो that is of 460,000. Now, transfer of notes receivables. On December 31st, Startwell accepted a 9-month 10% note for the 200,000 US dollar for customer. 3 months later, on March 1, Startwell discounted the note at its local bank. The bank discount rate is 12%. Before preparing a journal entry to record the discounting, Startwell must record the accrued interest on note from December 31st until March. क्या करना उसने, must record accrued interest. उससे पहले accrued interest की entries लाजमी पास करनी है. So when we are talking about accrued interest entry, that is interest receivables to interest
रेवेन्यू, क्या एंट्री पास होगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल्स टू इंटरेस्ट रेवेन्यू, के इतना रिसीवेबल इंटरेस्ट हमारे पास है। और कैसे निकला? 2 लाख 10%, 3/12, ये 3 मंथ्स की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ नोट रिसीवेबल्स आर देयर, फेस अमाउंट ऑफ नोट रिसीवेबल 200,000, इंटरेस्ट ऑन मैच्योरिटी कितना निकला है? 200,000, 10%, 9/12 कितना है? 15,000। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ नोट रिसीवेबल 215,000। डिस्काउंट फी कैसे निकली है? 215,000, 12% इंटू 6/12, तो कितना डिस्काउंट हुआ है? 12,900। सो कैश प्रोसीड्स आर 202,100, दैट इज द प्रोसीड्स फ्रॉम कैश। So cash 202,100, loss on sale of note receivables 2,900, note receivables कितने थे? 2 लाख, and interest receivable कितना है? 5,000। So deciding whether to account for transfer as a sale or secured borrowing, क्या करना चाहिए? तो फाइनेंसिंग विद रिसीवेबल्स, यहाँ पे 2 चीजें, या तो ट्रांसफर कर दें या प्लेज कर दें। ट्रांसफर करेंगे तो डज द ट्रांसफर मीट 3 कंडीशंस, कौन कौन सी हैं जी? रिकॉर्ड एज सेल, रिमूव रिसीवेबल्स, रिकॉर्ड प्रोसीड, रिकॉर्ड गेन एंड लॉस, और इफ नो, रिकॉर्ड एज सिक्योर्ड बोरोइंग, रिकॉर्ड लायबिलिटी, रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इफ प्लेजिंग, डिस्क्लोज अरेंजमेंट इन अ डेट नोट, कि जब भी प्लेज करके नोट लेंगे तो आप उसका डिस्क्लोज कर दें कि हमने अकाउंट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट से लिए। Then there is also being difference between US GAAP and IFRS. US GAAP and IFRS approach often leads to similar accounting treatment of transfer of receivables. US GAAP focuses whether control of asset has shifted from transfer to transferee, and IFRS requires more complex decision process. The company has to transfer the right to receive the cash flows from receivables and then consider whether the company has transferred substantially all the risk and reward to ownership as well as whether the company has transferred, यानी कि उनकी ज्यादा कंट्रोल्ड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसमें हम ओनरशिप भी चेक करते हैं कि ये वाकई में क्या ट्रांसफर हो गए या नहीं हो गए। हाउएवर यूएस गैप का फोकस क्या होता है कि ये प्रॉपरली शिफ्ट हो गए हैं कि नहीं हुए। सिक्योर्ड बोरोइंग वर्सेस सेल, कि सिक्योर्ड बोरोइंग और सेल्स में क्या फर्क होता है? द एफएएसबी कंक्लूडेड दैट अ सेल अकर्स ओनली इफ सेलर सरेंडर कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स टू बायर। 3 कंडीशन मस्ट बी मेट। ट्रांसफर कैसे हो सकती है? ट्रांसफर्ड एसेट आइसोलेटेड फ्रॉम ट्रांसफरी हैज राइट टू प्लेज ऑल एसेट, ट्रांसफरी डज नॉट मेंटेन कंट्रोल थ्रू रीपरचेज एग्रीमेंट। इफ दीज आर मेट, इज देयर कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट टू रिकॉर्ड एज सेल, and if that is not being met, record it as sale and reduce receivables and record gain or loss. Whereas in yes condition, reduce receivables, record assets obtained and liability incurred, record gain or loss. No, record it as a secured borrowing. Then again वही वाली diagram चली, record liability and record interest expenses. Presentation and analysis of receivables segregates the different type of receivables that a company possesses. If material appropriately offsets the valuation accounts against the proper receivable accounts, these are the important thing. Determine that receivable classified in the current asset section will be converted into cash within the year or operating cycle, whichever is longer, यानी कि या तो within a year or operating cycle, which of the लॉन्गर, यानी करंट एसेट्स को उसने कन्वर्ट करना है कैश के अंदर। डिस्क्लोज एनी लॉस कंटीजेंसीज दैट एग्जिस्ट ऑन द रिसीवेबल्स, डिस्क्लोज एनी रिसीवेबल्स डेजिग्नेटेड और प्लेज्ड एज कोलेटरल, एंड डिस्क्लोज द नेचर ऑफ क्रेडिट रिस्क इनहेरिट इन द रिसीवेबल्स। नाउ द प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स के एनालिसिस पहले भी आप करते रहे, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर या टाइम्स डेज आउटस्टैंडिंग या एवरेज कलेक्शन पीरियड्स, दीज आर known as the analysis of account receivables. Net sales over average trade receivables is known as account receivable turnover, that is equals to 25 times, means कि आपके 25 टाइम रिसीवेबल्स देते हैं और वो 25 टाइम रिसीव हो जाते हैं, यानी 1 टाइम आपने रिसीवेबल्स दिए, वो आपको दोबारा रिवर्ट हुए, वापस आए रिसीवेबल, फिर आपने रिसीवेबल्स दिए, फिर आपको वापस आए, तो ये साइकिल 25 टाइम्स होता है। और इस साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? दैट इक्वल्स टू 14.3 डेज। ये कैसे निकलता है? सिंपल सा केस है, 365 डेज डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, कि जो भी अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर है वो इसमें आ जाएगा। This ratio used to assess the liquidity of receivables. Liquidity of receivable assess होते हैं, measures the number of times on average a company collect receivables during the period, कि number of times the company has collected the receivables during the period.
देयर इज रिक्वायर्ड विल बी सम कैश कंट्रोल्स, कुछ कैश कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमने रिपोर्टिंग ऑफ कैश पढ़ा था. नाउ कैश इज आल्सो बीइंग रिक्वायर्ड. क्या हमारे पास जो कैश रिकॉर्ड हो रहा है और क्या बैंक के पास रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो टू सम एक्सटेंट सिमिलर है या डिफरेंट है? क्या हमारी मैनेजमेंट कोई लॉस बियर कर रही है, क्या कर रही है? मैनेजमेंट फेसेस टू प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग फॉर कैश ट्रांजैक्शन. Establish proper controls to prevent an unauthorized transaction by officers or employees. यानी अगर कोई खुद आए साइन करके चेक ले जाए, कहां से पकड़ेंगे? तो यहां के लिए बना था reconciliations. Provide information necessary to properly manage cash on hand and cash transaction. यानी information necessary to properly manage cash on hand and cash transactions. Cash controls using bank accounts to obtain desired control objective. A company can vary the number and location of banks and types of accounts. General checking accounts होते हैं, collection floats होते हैं, means कोई चीज आ रहा है, चेक आ रहा है, अब वो float में. Log box account, there is also being one type of thing, or impressed bank account, that is also one of the type of bank account. So these are used to manage this unauthorized transactions. These all the types are for that thing. Journal checking, collection floats, log box account, impressed bank accounts. These all are the types of bank accounts. The impressed petty cash system. Petty cash कैसे मैनेज होती है? To pay small amount of miscellaneous expenses. Step 1, record 300 transfer of fund to petty cash. तो simple सा आंसर होगा, that is petty cash to cash. That is 300. The petty cash custodian obtains signed receipt from each individual to whom he or she pay. उसके पास क्या आता है? Signed receipt आती है from whom individual he or she would going to pay the cash. यानी उस vouchers किसको सबमिट करने हैं आपने? Custodian को. Then third, custodian receive a company check to replenish the funds. Office supplies expense, postage expense, entertainment expense, cash over and short 2. तो कैश कितना हो गया? 173. तो इम्प्रेस्ड पेटी कैश सिस्टम में कस्टोडियन ये एंट्रीज पास करेगा जब भी कैश की एंट्रीज आएंगी. If the company decide that the amount of cash in the petty cash fund is excessive by 500, it lowers the funds by reversing the same entry. वो जो 300 के लिए की थी वही रिवर्स कर ली एंट्री. तो now the petty cash would be like this. Physical production of cash balances. Company should minimize the cash on hand, only have an hand petty cash and current day's receipt, keep funds on vault, safe or locked drawers, transfer each day, yani these are general things, yani transfer each day's receipt to a bank as soon as practicable, periodically prove reconcile the bank shown in journal ledger, yani ये हम चीजें involve होती हैं. Now reconciliation of bank balances, कोई दफा reconciliation of bank balances करते हैं जो आपने ऑलरेडी बैचलर साइड में की होगी कि reconciliation of bank statement कैसे करते हैं. 4-5 आइटम्स होती हैं जिसके अंदर क्या आता है? डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक्स, बैंक चार्जेस और क्रेडिट, बैंक डिपॉजिट और एरर्स. दीज आर द रिकंसिलेशन आइटम्स. इन 4 बेसिस पे हम रिकंसिलेशंस करते हैं. डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक्स, बैंक चार्जेस और क्रेडिट्स एंड बैंक और डिपॉजिट एरर्स, डिपॉजिटर एरर. So that is how the reconciliation would be done. Bank balance add per bank add करते हैं इसके अंदर deposit in transit, undeposited receipt और bank errors. ये सारी चीजें इसके अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं और डिडक्ट कर देते हैं any outstanding checks और bank errors that overstates the bank balance. ऊपर वाले में कौन से बैंक errors? जिसने अंडरस्टेट कर दिया था कि 10 रुपए थे, 5 रुपए एंटर किए हुए थे, तो अंडरस्टेट किया था तो वहां पे ऐड होगा, और अगर ओवरस्टेट किया तो यहां से माइनस होगा. करेक्टिंग कैश बैलेंस, बैलेंस एज पर डिपॉजिटर, उसको भी करेंगे. बैंक क्रेडिट्स और कलेक्शन नॉट येट रिकॉर्डेड इन द बुक, वो सारे इसमें एड अप करेंगे. बुक एरर्स दैट अंडरस्टेट द बुक बैलेंस, वो सारे इसमें ऐड करेंगे. बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन बुक्स, बुक एरर्स दैट ओवरस्टेट द बुक बैलेंस. सो वी हैव अ करेक्टेड कैश बैलेंस. Now there is a cash control to illustrate. Nugget Mining Company's books show a cash balance at the Denver National Bank on November 30, 2012, that is of $20,502. The bank statement covering the month of November shows the ending balance of $22,190. Now there's a difference. An examination of Nugget accounting records in November bank statement identifies the following items. The deposit of $3,680 that Nugget mailed November 30 does not appear on the book statement. यानी डिपॉजिट जो भेजा था कितने का भेजा था?
3680 का वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा. चेक्स रिटर्न इन नवंबर बट नॉट चार्ज इन नवंबर बैंक्स आर, दीज आर द चार्ज. Nuggets had not yet recorded a $600 of interest collected by a bank November 20 on Sequoia bond held by the bank. यानी कि उसके बाद क्या हुआ, not yet recorded 600 interest collect किसने किया है, by the bank of November 20 on Sankhya Corporation. Bank service charges of $18 are not yet recorded in the Nuggets book. The bank returned one of the Nuggets customer check for $220 with the bank statement marked NSF, not sufficient funds. NSF means the bank treated this bad check as a disbursement, यानी उसने इसे disbursement की तरह error के through check कर लिया था. Nuggets discovered that it is incorrectly recorded check $732 returned in November for $131 in payment of account for 311, यानी 311 की जगह उसने क्या लिख दिया था, 131. The check for Nugget Oil Corporation in the amount is $175 that bank incorrectly charged the Nugget accompanied out, यानी कि Nugget Oil Company का कोई चेक था जिसने mistakenly उसने Nugget को चार्ज कर दिया था. So how it is, that is our things. First one, deposit in transit 3600, ये add up हो जाएगा, plus bank errors for incorrect charges of accounts कितने के हुए थे, 175 के हुए थे. वो हमने यहाँ पे इसमें बैंक एरर कर दिए थे क्योंकि उसने ओवरस्टेट कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, सॉरी अंडरस्टेट कर दिए थे उसने. सो हियर इट इज. एंड देन आउटस्टैंडिंग चेक्स कितने के थे, 5001 के डिडक्ट कर दिए हमने, और यहाँ पे कैश बैलेंस 21,004 आ रहा है. बुक बैलेंस इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना था, $600 था इंटरेस्ट जो कलेक्ट किया है बैंक ने. एरर्स इन रिकॉर्डिंग चेक ऑफ 732 180 का डिफरेंस था तो हमने यहाँ पे उसे एड अप कर दिया. डिडक्ट क्या हुआ, बैंक सर्विस चार्जेस 18 के हुए. एनएसएफ चेक जो उसने कंडीशनली रिकॉर्ड किया था दैट इज 220, दैट इज 238. तो दैट मींस वी हैव नाउ इक्वल बुक बैलेंस 221,044. Now cash generalize adjusting entry at November 30 on book of Nuggets Mining Company. कैश कितना था, 542. इतना का डिफरेंस आ रहा था. ऑफिस एक्सपेंस का 80 का आ रहा था, अकाउंट रिसीवेबल्स का 220 का आ रहा था, और अकाउंट पेएबल कितने हो रहे थे हमारे पास, 180 के हो रहे थे. एंड देन इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑफ 600. सो दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म योर ओवरऑल रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. इसे ही हम कहते हैं दैट इज नोन एज रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट. उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं. रिव्यू क्वेश्चंस कुछ आते हैं हमारे पास. सम द रिकंसिलेशन आइटम इन अ बैंक रिकंसिलेशन दैट विल रिजल्ट इन एडजस्टिंग एंट्री बाय द डिपॉजिटर इज आउटस्टैंडिंग चेक्स, डिपॉजिट इन ट्रांसिट, बैंक एरर और बैंक सर्विस चार्जेस. इनमें से कौन से आइटम्स है जो एडजस्टिंग एंट्रीज लेके आते हैं, एंड द आंसर वुड बी डी, बैंक सर्विस चार्जेस हैं. ये हमारे पास क्या लेके आते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज को लेकर आता है. नाउ देयर इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स. कुछ इम्पेयरमेंट्स होते हैं रिसीवेबल्स के. कंपनीज evaluate their receivables to determine their ultimate collectability, यानी क्या करते हैं वो ultimate collectability को evaluate करते हैं. Allowance method is appropriate when probable that an asset has been impaired and amount of loss can be reasonably estimated. Long-term receivables such as loans that are identified as impaired, companies perform an additional impairment evaluation. यानी कि कंपनी नॉर्मली अपनी जितने भी होते हैं रिसीवेबल्स उनको अल्टीमेट कलेक्टेबिलिटी को एवेल्युएट करती रहती है, जिसे हम कहते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स कि क्या वाकई में ये रिसीवेबल्स हमें मिलने हैं या नहीं मिलने हैं. लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स सच एज लोन दे आर आइडेंटिफाइड एज इम्पेयर्ड, कंपनीज परफॉर्म एन एडिशनल इम्पेयर्ड एवेल्युएशन. जो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स जिसको आप कहते हो कि यार इसकी अल्टीमेट कलेक्टेबिलिटी जो है वो लो है तो हमने कुछ अमाउंट इम्पेयर्ड कर देते हैं. तो जब इम्पेयर्ड करते हैं तो दैट इज नोन एज एडिशनल इम्पेयर्ड एवेल्युएशंस. Impaired measurement and reporting. Impairment loss is calculated as the difference between the investment in the loan, generally the principal plus accrued interest rate, यानी difference between them, यानी कि principal investment in the loan, difference between investment in the loan and the expected future cash flow. कितना difference in the loan और expected future cash flow discounted at the loan historical effective rate, that is what we known as impairment. इसी को कहते हैं हम impairment कि investment in loan कितनी हुई हुई है और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट लोन हिस्टोरिकल इफेक्टिव रेट, कि हमारे पास कितनी हमने लोन प्रोवाइड की है और एक्सपेक्टेड उनसे हमें फ्यूचर में कितना रिसीव होना है. जो डिफरेंस होगा उसे कहेंगे दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट.
Here is the impairment. You can see that the of receivables at December 31st, 2011. Ogden Bank recorded investment of $100,000 in the loan to Carl King. The loan has been historical effective rate of 10%. The principal is due in full at maturity in 3 years and interest is due annually. The loan officer perform a review of loans expected future cash flows and utilizes the present value method for measuring the required impairment loss. तो 2012 में उसे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कितना एक्सपेक्टेड है उसे 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब 100,000 का 10% कितना हुआ 10,000. एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से कितना रिसीव होने के चांसेस हैं, दैट इज ऑफ 5,000. तो लॉस ऑफ कैश फ्लो कितने का एक्सपेक्टेड है, दैट इज ऑफ 5%. यानी कि ये उसके पास ओवरऑल रिकॉर्डेड आ रहा है. एंड देन वी हैव 2013, देन अगेन 10,000 और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना रिसीव होना चाह रहा है उसे 5,000. तो दैट मींस फॉर लॉस ऑफ कैश फ्लो 2014 110 बिकॉज 10,000 उस ईयर के प्लस ओरिजिनल वैल्यू जो रिसीव हो रही है. So that means it also includes 105,000, तो 5,000 यहाँ पे आ गया. तो लॉस ऑफ कैश फ्लो 15,000, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 115,000, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर देयर फॉर 130,000. तो ये हमारे पास चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. एंड यू कैन सी दैट ऑल द थिंग्स आर बीइंग देयर फॉर द इम्पेयरमेंट, यानी कि हम लोग यहाँ पे इम्पेयरमेंट को मेजर करना चाह रहे हैं कि क्या इम्पेयरमेंट किस तरह हम लोग मेजर करें. एंड दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के लॉस ऑफ कैश फ्लो. कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितनी 100,000 थी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100,000 ड्यू इन 3 years at 10%, तो उसकी वैल्यू आई थी 7,132. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000. इंटरेस्ट पेएबल एनुअली फॉर 3 years, कितना इंटरेस्ट पे हो रहा है 5,000, तो उसकी हमने वैल्यू निकाली 12,432. तो वो कितनी आ रही है 87,566. तो लॉस ऑन इम्पेयरमेंट कितना हो रहा है 12,434. रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स क्रेडिट. दैट मींस इम्पेयरमेंट वहीं जाएगा. There are some relevant facts regarding it. The accounting and the reporting related to cash is essentially the same under IFRS and GAAP. In addition, the definition used for the cash equivalent is same. One difference is there. In general, IFRS classifies bank draft as cash. Like GAAP, cash and receivables are generally reported in the current asset section of the balance sheet under IFRS. However, the company may report cash and receivable as the last item of the current asset under IFRS. This is a very small difference. The fair value option is similar with the GAAP and IFRS but not identical. The international standards related to fair value option is subject to certain qualifying criteria, not of US standards. IFRS and GAAP differs in criteria used in account for transfer of receivables. IFRS is the combination of approach focused on risk and reward and loss of control. GAAP uses loss of control as a primary condition. वो risk को account for नहीं करता. So that is the difference that exists among IFRS and GAAP. So that's the end of the lecture number 9. What we have studied today is the note receivables, management of note receivables, interest bearing notes, zero interest bearing notes, then sale of receivables. Then we have studied the how we are going to manage the face value, discount, premium, sales को किस तरह manage कर रहे हैं. उसके बाद हमने देखा कि impairments कैसे deal हो रही, cash control कैसे deal हो रहा है, special issues क्या क्या हैं जो exist करते हैं regarding cash and receivables. So all these things are being studied today. And Allah Hafiz.